کے لیے نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کو تعلیم دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے. اور اللہ کی قسم اگر کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد اور اپنے شکشک کے ساتھ اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا، خالق کائنات پروردگار عالم نے اس کا عذاب پتہ کتنا سخت رکھا ہے، کتنا سخت ہے. اللہ کے نبی جب معراج کے لیے تشریف لے گئے نا تو ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے اس کے گلفوں چیر رہے تھے. ایک آگ تھا آگ کا، اور یہ والا چیرتے اور چیر کے گرنے کے بعد یہاں کو آتے تو یہ والا ٹھیک ہو جاتا. یہ عذاب ان کو ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے معلوم کیا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس بنیاد پر عذاب دیا جا رہا ہے اتنا سخت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر باتیں تو بہت اونچی کیا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان بچوں کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتے تھے. آج ہم اور آپ معائنہ کریں کہ آج اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم کس معیار کا پڑھا رہے ہیں؟ کیا بچوں کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کر رہے؟ ارے ایک ماں باپ اپنی اولاد کو بھیجتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ آج مسجد مدرسے پر مسلمان کا بھروسہ نہیں اور ایک غیر کے اسکول پر بھروسہ ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، تم نہیں ہو. کون ہے ذمہ دار؟ میں ذمہ دار ہوں، تم میں سے کوئی اور ذمہ دار نہیں. میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں یہاں پر ہوں. میں ذمہ دار اس لیے ہوں کہ میں نے آپ کو کوالٹی نہیں دی ہے، میں نے آپ کو وہ چیز نہیں دی ہے جس کے آپ خواہاں تھے. میں نے تو آپ کو صرف الف با تا پڑھانے کے بعد قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھایا اور بچے کا پورا قرآن پڑھا کر کے اس کے سر پر پگڑی باندھ کر کے بھیج دیا، اور جس کو 3 رکوع بھی صحیح سے یاد نہیں. یہ کیا میں نے یہ کھلواڑ کیا ہے بچوں کی زندگی کے ساتھ. تو آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ آج جو کہیں پر کسی پر بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجے گا کیا اس کا یقین مسجد مدرسے پر رہے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ گھر کے اندر کھیلتا ہے 2 گھنٹے جا کر کے امام صاحب کو پریشان کرے آئے گا. اس سے بڑے اس سے ہم بھی بچ جائیں گے. لیکن میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، دکان چلانے والے دکان چلاتے رہو، دکان چلانے والے دکان چلاتے رہو. چھوٹے چھوٹے دکانیں کھلتی رہتی ہیں اور کھل رہی ہیں. ابھی آپ جو نہال وہار کا اپنا ماحول دیکھ رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہاں سے کام ہونا چاہیے؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتانا. کیا کبھی اسلام کے اندر کہیں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش نہیں پڑھا سکتے؟ پوری قرآن اور حدیث پوری ہسٹری چھان کر کے دکھا دو. سارے مولاناؤں کو دیکھ اپنے فون کر کے پوچھ لینا کہیں پر اگر منع لکھا ہو تو. کہیں پر مجھے یہ دکھاؤ کہ میرے دربار اعلیٰ حضرت منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ مدرسہ ہے، میرے تو اعلیٰ حضرت کی اس مسجد میں بیٹھ کر کے انگلش کی تعلیم حاصل کی، درگاہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جو رضا مسجد ہے. جب وقت کا مجدد جس کا وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام تو لیا لیکن اعلیٰ حضرت کا جو مشن تھا، اعلیٰ حضرت کے مشن کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو مزدوری کرتے ہوئے تو دیکھا لیکن اللہ کی قسم ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں یہ چابی پانا نہ دے کر ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیتے ہوئے نظر آئے. دیکھا آج اگر آپ دیکھو تلواروں کی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اس قلم کی ہے. کیا؟ اس قلم کے اندر جو روشنائی ہے، اس روشنائی سے زیادہ قیمتی چیز پورے ورلڈ کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. اور آپ کے بچوں کی زندگی جو یہ قلم سنوار سکتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں، تم چاہے کتنی دولت اپنی اولاد کو دے دو، اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. یہ تعلیم، یہ قلم مضبوط بناتا ہے. یہ قلم ہے جو زندگیوں کو سنوارتا ہے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں
चाबी पाने मत दो, अपने बच्चों के हाथों में दो, तो अपने बच्चों के हाथों में ये कलम दो, ताकि तुम्हारा बेटा कहीं पर आईएएस बन करके, कहीं आईपीएस बन करके, कहीं मजिस्ट्रेट बन करके, कहीं दीन का खादिम बन करके ये दुनिया के हिसाब किताब नहीं लिख रहा हो, बल्कि अपने कौम की तकदीर के, अपने कौम के मुस्तकबिल के फैसले लिखता हुआ नजर आ रहा। ये ना हो पैसा तो हर कोई कमाता है, अरे जानवर नहीं कमाता पैसा, अल्लाह उसे भी रिस्क देता है। कौन सा जानवर भूखा मरता है मुझे बताओ तो सही। दौलत पैसे के लिए, किसके लिए कमाते हो दौलत? इसलिए ना कि खाना अच्छा मिलेगा। इंसान को छोड़कर 18,000 अल्लाह ने मखलूकात पैदा की है, लेकिन 18,000 में से सिर्फ इंसान कमाता है, कोई और मखलूक नहीं कमाती। लेकिन अगर समंदर के अंदर है तो मेरा रब वहां भी रिस्क दे रहा है, जमीन के अंदर है वहां भी रिस्क दे रहा है। मेरा रब अगर कोई कीड़ा मकोड़ा है उसे भी रोजी देता है, आसमान पर उड़ने वाले ये चरिंद परिंद को भी रोजी दे रहा है। तो ये इंसान जरा तू ये बता, जिस दौलत के चक्कर में आकर के तूने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस दौलत की तो इतनी औकात है कि उस दौलत का कोई वजूद ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के हाथों में क्या देना चाहिए? जोर से बोलो, क्या देना चाहिए? कलम। कलम है तो आपकी पावर है। आप क्या समझते हो ये दौर फौजों का है? आप क्या समझते हो ये दौर जो है बमबारी का है, वैसे जीत जाएंगे? नहीं, ये दौर सिर्फ और सिर्फ कलम का है, माइंड का है, जिसके पास जितनी एजुकेशन है, शिक्षा है। आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के बगैर इल्म के आ गई। बताओ ना, कोई चीज बगैर इल्म के है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है? आप कहोगे हम तो पढ़ाते हैं, तो दूसरा मेरा सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इदारे कायम क्यों नहीं करते हैं? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं कहना चाह रहा हूं, प्लेटफॉर्म से, अपने निहाल विहार से, कि आपने मस्जिदों के अंदर लाखों चंदा तो दिया, हर जुमे को 10, 20, 50 रुपए भी डालते हो। ए मस्जिद की कमेटियों, मैं पूरे हिंदुस्तान की कमेटियों से कहना चाहता हूं कि जो जुमे के अंदर मस्जिद के अंदर चंदा आ रहा है, अपने इमाम साहब से कहो और उनसे कहो कि वो कौन से और रिक्वेस्ट करे, और अपने यहाँ पर हम मकतब नहीं बल्कि मकतब के साथ साथ अब दुनियावी तालीम के मरकज भी हर मस्जिद के साथ खोल दो। सारी मस्जिद के सदर मेरी बात सुने, वरना तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं होगा अगर तुमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। तुम्हारे उरूज का दौर नहीं है, जवाल का दौर है, जवाल का, पस्ती का है, पस्ती का। और पस्ती से वैसे ही उठा जाता है, एकदम नहीं उठा जाता, बल्कि जिस तरह से गिरते हैं ना, उरूज का दौर था। 700 साल रहे ना, 700 साल रहे ना, उरूज का वक्त था, तरक्की का वक्त था। हमने जिन चीजों को छोड़ा दूसरों ने अपना लिया और हम ऐश इशरत मौज मस्ती में पड़ गए। हमारे मुआशरे में, हमारी कौम में सल्तनतें कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई कि अल्लाह की कसम उन्होंने हमारे ज़मीर का सौदा कर दिया। अगर मैं कहूं, ऐसे मुनाफिक कौम के गद्दार हमेशा रहे हैं। आज भी आप कहोगे कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हो, हजार लोग आते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको तोड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। अरे जब तुम्हारी निगाह के सामने तुम्हें चीख चीख करके अपना दर्द दिल दिखाया जा रहा है, और सुनो, 12 मैंने सदर साहब से भी कहा, कुरान खानियां होती हैं, कुरान खानियों में जाते हैं, बहुत सारा टाइम होता है, हमें टाइम ही नहीं मिलता। हमें मोहब्बत सबसे है, हकीकत बताऊं, ऐसा नहीं कि किसी से सब बुलाते हैं, दावत करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, नहीं जा पाते। लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि हम अपने बच्चों की तालीम को छोड़ करके आपके घर पे दावत खाने नहीं जा सकते। आप खुद बताओ, आपके घर की दावत अच्छी है या आपके बच्चों को पढ़ाना अच्छा है? पढ़ाना अच्छा है ना। अगर सिर्फ बिरयानी खाते रहे ना तो ये पेट और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। इस पेट को लेकर जाऊंगा कहां? कब्र में बढ़ जाएगा ना।
अरे इस पेट को भूख ये बिरयानी की नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे बच्चों को भी अगर भूख हो, अगर प्यास लगे तो वह किसी और चीज की नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों को अगर भूख लगे तो वो तालीम की भूख लगे, तुम्हारे बच्चों को अगर प्यास लगे तो वो कलम के रोशनाई की प्यास लगती हुई नजर आए। ऐसी हो, यही मेरे लिए कहा। सुनो, सदर साहब बैठे हैं, हाई जी बैठे हैं, पूरी कमेटी बैठी है। उम्रे का ऐलान हुआ था, क्यों नहीं गया मैं? सदर साहब से पूछोगे बताएंगे कि तालीम की वजह से नहीं गया। 21 दिन के लिए जाता तालीम की वजह से। ये कहा इन्होंने मुझसे एक बार कि भेज दे रहे हैं हम आपको शब बारात से पहले पहले। मैंने कहा बच्चों की तालीम चल रही है। फिर उन्होंने कहा भी कि नहीं, ईद के बाद एक ऐलान और कर देंगे शब कद्र में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो लालच नहीं है। वो तो समझ रहे? तो जब मेरे नबी के दरबार की बारी हो तब मेरे ये कहा कि मेरे बच्चों की तालीम का मसला है, 21 दिन के लिए जाऊंगा, 21 दिन के अंदर उनकी 3 महीने की तालीम का नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम की फिक्र है, उसके बाद इंशाअल्लाह ये भी तो मेरे नबी की उम्मत की बेटियां हैं, ये भी तो मेरे नबी के उम्मत के बेटे हैं, ये भी तो मेरे नबी के उम्मत के लहलहाते फूल हैं। अरे अगर इनके सीरों में मुस्तफा करीम का इश्क हो गया तो हमारा मदीना जाना तो वैसे ही कबूल हो जाएगा। मदीने के चक्कर लगाते रहे और हिंदुस्तान में आकर के बिरयानी की जगह तोड़ते रहे, किस मुंह से दिखाएंगे मुंह मैदान हश्र में अपने नबी को? हजरत गौसे आजम गए थे ना, उम्रे हज के लिए गए थे हुजूर के दरबार में, तो अपना चेहरा छुपा करके फिर रहे थे। कौन? हुजूर गौसे आजम। तो किसी ने देख करके कहा आप तो वलियों के सरदार हैं, आप चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? तो आप कहते हैं पता नहीं कि मेरी बख्शिश हुई है या नहीं, कल क़यामत के दिन अगर मेरी बख्शिश नहीं हुई, अगर मेरे नबी ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं अपना मुंह छुपा रहा हूं। ये मेरे अजीज सुन्नी गैयोर मुसलमानों, जागो, बेदार हो जाओ। और बेदारी तुम्हारी किसी और चीज में नहीं है। बेदारी का सिर्फ मतलब रोडों पर निकल करके अपनी बात मनवाने का नहीं है, यह कोई और तरीका नहीं है। अगर सिर्फ तरीका है तो अपनी संस्थाओं को मजबूत करने का है, अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का है, अपने कौम के अंदर यह बेदारी पैदा करने का है और अपने कौम के अंदर एक इनकलाब लाने का है कि तुम्हारी कौम का यह बच्चा ये शिक्षित नजर आए, तुम्हारी कौम का बच्चा ये तालीम याफ्ता